गुरु शब्द प्रगासिया अब कैसे मरूं मरण मन मनिया मर मर जाते जिनी राम न जन्या रहा मरनो मरण कह सब कोई सहजे मरे अमर होए सोई कहो कबीर मन भया आनंदा गया अरुण रहया परमानंदा। जब जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हसूरी जो बैठे सुन गुरु प्यारे सत्संगी सर्वांसदानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की गुरगुरपति साझी करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जिस पावन पवित्र याद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨੌਵੇਂ गुरु नानक पातशाह की जोत नाल प्रकाशित सतगुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत नाल जुड़ी पूजा। हर साल की तरह सारे संसार की गुरु नानक नाम लेगा इस याद में मनाते हैं ते गुरु के कौतुक को याद किया जाता है। असी जो शहादत लफ्ज़ की गल करते हैं मेरे वीर ने अपनी गल की शरीर शहादत इन थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये शहादत इस अर्थ में नहीं है शरीर की गल नहीं, इस शरीर को बहुत ऊपर की गल है। ये प्रमाण है इस गल का कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की सारी बाणी जिस कंपनी अक्सर विद्वान लोग इस तरह की गल करते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी में त्याग की गल मौत की गल इथों तक कि कई सज्जन निराशा की भी गल करते हैं कि पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब ते बाबा फरीद जी की बाणी में निराशा का दीपन से मिलता जदों कि ये साडी ही मनुखी समझ का नुक्स है। सच ये है कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जदों संसार में मिथिया कहते हैं या साडे नाल मौत की गल करते हैं या इस संसार दे विच त्याग की गल वैराग की गल करते हैं तो सच ये है कि गुरु साहब इस संसार में मिथिया कहते कहते भी इस संसार नाल बहुत प्यार करते हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह का जीवन का सब तो विलक्षण कौतुक ये है कि उन्होंने मनुखता कले मनुखता ही नहीं इस दिसदे प्रसारे में इन्ना प्यार किया है कि ये जिहड़ा अज जिस याद में जुड़ बैठे हैं ये मनुखता नाल कीते हुए प्यार का सब तो प्रचंड प्रमाण है जिहड़ा इस संसार में किसी होर ने इस तरह का साका नहीं किया। मनुखता के प्रति प्यार की इंतहा है ये शहादत। देखो गुरु प्यारे तीन लफ्ज असी सारे ने बहुत बारी सुने जिन्हों के अर्थ अखरी तौर पर एक ही बलिदान कुर्बानी ते शहादत ये तीन लफ्ज अक्सर वरते गए ते तिन्हां दे
ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਬਲੀਦਾਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹੱਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਸੈਮਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੀਦਾਨ, ਬਲੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ देखिए बताओ किया गया है। तेग बहादुर आन जब ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ। ਯਾਦ ਮਨਾ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ। ਦੇਵਤਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹੂਤੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਸਾਲ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨੈਨੀਤਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ 3-4-5 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਗਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਤਖਤ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਜਨ, ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹਦਾ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਮ ਅਰਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ
अपनी पालक की घरवाली को आख्या कि तू ना बन ते मैं बघियाड़ बनदा ते मैं तेन खाने वास्ते अगे पिछे पिछे तू अगे उची उची बचाओ बचाओ करती रहेंगी तेन मैं करन ते जो उची उची गौ तू बोलेगी गौ बन के ते बचाओ बचाओ की गल करेंगे तो तब भंग हो जाएगा क्योंकि गां की हत्या नहीं कोई बर्दाश्त कर सकते। वो इदा ही होया तो जो मार कंडे ऋषि ने अखां खोलियां तो उन्होंने पता लग गया कि मेरे नाल कपट किया गया तो उत्थे श्राप देता शिव जी कि तू हुण इत्थे बघियाड़ करके ही पूजिया जाएगा। तो उत्थे जिहड़ी मूर्ति रखी हुई वह धड़ जिहड़ा है वो बंदे का सिर जिहड़ा बघियाड़ का तो बागेश्वर हुण उत्थे गुरु नानक साहब गए इस करके क्योंकि उत्थे बंदियां की बलि दी जाती सी। उत्थे राजा जिहड़ा सीगा वो तांत्रिक विश्वास वाला सी ते बलि दी जाती। गुरु नानक साहब इस करके गए ए जिहड़ी तुसीं मनुखां की बलि अपने लालच करके दे रहे हो, अपने सुखां करके दे रहे हो ते अपने अंदर पैदा हुए कोई डर करके तुसीं दूजियां की बलि दे रहे हो कि बंद कर। गुरु नानक साहब का उत्थे स्थान बने हुए वो सारा प्रचार हो। मैं बेनती इस करके तुहाडे नाल घटना सुनाई कि बलिदान का अर्थ आ सीगा कि दूजियां नूं भावें वो पशु है ते भावें वो बंदा है देवी देवतियां नूं खुश करने वास्ते लेखे ला मार दे पूजा मानता करके मंत्रण जंत्रण में कर्म कांडां दे रहे यज्ञ करके हुण दूजे पासे कुर्बानी एक कुर्बानी जिहड़ी है ये इस्लाम दे विच है ते इस्लाम दे विच जदों कुर्बानी है जिहनूं असीं फिदाइन लफ्ज़ तुसीं सुनिया फिदाइन इन्हां दा इस्लामी खाटूआं दा एक फिरका फिदाइन का मतलब फिदा होना। वो फिदाइन कौन ने जेड़े इस करके कुर्बानी दिंदे ने जां किसी नूं मारते ने कि सवाब मिलेगा, इहदे नाल खुशी मिलेगी। हजरत मोहम्मद साहब की ऐसी है कि मार दो मर जाओ इहदे नाल खुशी मिलेगी। एक कुर्बानी के अर्थ उन्होंने आ जिहड़ा बकरीद है वो बकरीद भी ऐसे ही गिनती देंगे कि रब के नाम पे कलमे पढ़ के बंदा पे नहीं बकरा मार दे हलाल कर ते करोड़ों की गिनती में हर साल बकरे बकरीद वाले दिन वटे जाते हैं अल्लाह के नाम पे कि अल्लाह के दिन खुश होएगा। पर जी उथे भी लालच पे है ते जे अल्लाह खुश नहीं होया तो फिर जेड़ा इजराइल फरिश्ता है जिसने बैठा खड़ वही जिन्हें परलो वाले दिन क़यामत वाले दिन मनुखी रूहां दे देखे जोखे करने हैं ते दोज़ख विच जां बहिश्त विच भेजना है। उस जेड़ा फरिश्ता है वो नाराज ना हो जाए, वो भै जेड़ा है उस भै तो बचन वास्ते ते अल्लाह को खुश करने वास्ते कुर्बानी देनी है। मनुखी बिरती का डर ते मनुखी बिरती का लालच बलिदान के पीछे भी काम कर रहे हैं ते उस कुर्बानी के पीछे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जदों असीं गुरु तेग बहादुर पातशाह हजूर की शहादत की गल करते हैं तो बिल्कुल वक्र ये ना तो कोई डर ते ना कोई लालच है, ये सिर्फ प्यार है ते प्यार भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ है जिसका धार्मिक विश्वास बिल्कुल वक्रा ये मौके नहीं करना है। पर जदों वो वचन ये करते हैं कि पैर कामों को देखना है न पैर मान मान ना भाई तुहाडे अंदर डर की गिरती होवे ना तुसीं आप डरो ते ना तुसीं किसी को डराओ ते सच ये है कि असीं
आप भी डरे हुए हैं ते उसे डर के अधीन ही असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ डराउने हैं। सब तो ਵੱਧ डर साडे अंदर हर मनुख के अंदर पिया है, मर जाने का, मौत का। ते असीं जदों किसी नूं डराउणा हुंदा ते यही लफ्ज़ वरतदे हां, मार दियांगा, याद रख, खत्म कर दियांगा। हुण गुरुदेव कहंदे ऐ है तुहाडी मनुखी बिरती दा सच कि तुसीं आप भी डरे होए हो ते उसे डर दे अधीन तुसीं दूजिਆਂ ਨੂੰ डरा रहे हो। दातार कहंदे मैं तुहाडे गुरसिख कहाउण वालिਆਂ दे, गुरु दर ते पाउण वालिਆਂ दे जीवन दी इस बिरती ਨੂੰ खत्म होया देखना ना तुहाडे अपने अंदर डर होवे, किसी भी किस्म का डर। सब तो बड़ा डर मैं बेनती की मौत का। उस तो बाद जिन्ने भी जिउंदे जी असीं डर के अधीन जिउने हैं, वो डर की है कुछ खुस ना जाए साडे कुछ जो प्राप्त होया वो तो वंचित ना हो जाइए, बांधे ना रह जाइए, किते वो मुक ना जाए। जो प्राप्त होया उसदे विच किते कोई रुकावट विघन ना पै। मैं कई बार बेनती की है और आप जी को पता है ना गल्लां दा, साडियां मनुखी बिरतियां दा आ जिहड़ा सच है ना, इत्थे असीं पैर गीत कोई पए चंगी भली कोई खुशी असीं प्राप्त करन तो बाद भी फिर डर जाने। मैं अक्सर बेनती करिया करता, बैठियां ने मातावां भैणां बच्चियां घर विच साडे जदों पुत्तर जन्म लैंदा, टीवी ते असीं खुशी मनाउंदे ही नहीं ना, चलो मैं उधर नहीं जाऊँ ते भर जाने असीं खुशी नाल पुत्तर दी दा ते फिर दुनिया नूं दसना चाहुंदे हां, अखंड पाठ कराओ, कीर्तन कराओ, लंगर कराओ, बुलाओ सारिਆਂ ਨੂੰ, शुकराना समागम कराओ। साडे घर पुत्तर होया, सब नूं पता लगे, खुशी साझी करी, पर बैठियां ने आपां भी पिता दे तौर ते मनुखी बिरती दा सच की है कि असीं नाले ते अपने पुत्तर दी खुशी साझी करने ते आओ आओ सारे जने साडे घर पुत्तर होया, पर मां नाल ही चिंतित हुई, भयभीत हुई, काला टिका ला दी है, तड़ागी बन देती है, काली धागा बन देती है। क्यों? देखने वाले की नजर ना लग जाएगी कि साडे पुत्तर का नुकसान हो, क्योंकि साडे ही है साडी खुशी जिहड़ी है किथे है, उत्ते ते डर हावी है। और ये कदे पुत्तर दी गल, हर गल दे विच असीं इत्थे खड़े हां, साडी बिरती इत्थे, साडी सोच इत्थे खड़ी, साडी सुरतियां दा, साडी सोच दा, विचार मंडल दा सच ये है। मनुख दे तौर ते करोड़ दी कोठी बनाई, गृह प्रवेश दियां रखे प्रोग्राम रखे, महाराज ने घर बुलाया, कीर्तन भी कराया, लंगर भी कराया, ते बाद थोड़ी गाड़ी ला दी, ला लगी हुआ देखने वाले की नजर न लग जाए। दुकान खुली है, वो मिर्चां दे नाल नींबू टंग के कारोबार में दुकान में नजर न लग जाए। हर गल दे विच मैनूं याद है, मैं नागपुर हुंदा सी, बॉम्बे हुंदा सी, देखदा ट्रक नवा लेना, कार नवी लई है, भाई साहब अरदास कर दिओ ते नाल नारियल चुक के लिआओ, बन दिओ, बदशगुनी खत्म हो जाए। नारियल भरना जिहड़ा है वो माड़ियां जिहड़ियां ताकतां ने वो दूर भजा देते, साडी गड्डी का किते नुकसान ना हो, कुछ ऐसा ना हो। हर गल दे विच असीं डरे होए, भयभीत होए। गुरुदेव कहते मैं तुहानूं इस डर तो मुक्त होया देखना चाहुंदा। मैं तो बेनती शुरू की है ना कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत का सब तो बड़ा जिहड़ा विस्मादी पक्ष है ना, वो ये कि मौत की गल की है गुरु साहब ने, मिथ्या संसार की गल की है, रिश्तियां के मिथ्या पक्ष की भी गल की है, शरीर के मिथ्या पक्ष की भी गल की है, पर
ये मिथ्या की गल करते हैं, त्याग की गल करते हैं, वैराग की गल करते हैं, अनुराग की गल करते हैं। प्यार किया इस संसार को छड़ के भजे नहीं। सन्यासियां त्यागियां वांग वैरागियां वांग जेडे वैराग की परिभाषा करने वाले, वैराग के ढंढोरे पिटण वाले, त्याग की गल करने वाले, उन्हां वांग गुरु साहब ने सानू संसार को छड्डण वास्ते नहीं आख्या, संसार को त्यागण वास्ते नहीं आख्या, वो उन्हां वैरागियां वर्गे वैराग का धारणी बनने वास्ते नहीं आख्या। संसार विच रह के संसार को प्यार करने की गल होती है। शहादत गुरु तेग बहादुर साहब के संसार नाल कीती कोई प्यार की इंतहा का प्रमाण सिखर है। होमो का किसी भी धार्मिक विश्वास नाल तां की होया, पर तुसी मनुख दे है हो ते कल्ले मनुख नहीं हो। तुसी तुहानू पता नहीं, पर मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि तुसी मनुख दे रूप विच ते जिहड़ा मनुख दा नाम तुहानू दित्ता कि तुसी ही दित्ता ते अगों ये आम नाम तो फिर खास नाम तुसी दिते। शरीरां दे वखरेवियां करके ए इस्त्री है, ए पुरुष है, फिर उस तो भी अगे खास नाम जदों तुसी घर दे विच बच्ची जन्म लैंदी है जां बच्चा जन्म लैंदा है, फिर तुसी उन्हां दा भी खास नाम रखते हो। पर गुरदेव कहते वो शरीरां दे नाम ने, शरीरां की बनतर करके वखरे वखरे नाम सिर्फ उन्हां दी एक पहचान जिहदे करके तुसी रिश्ता कायम कर सको बाहरी तौर ते परिवार दे विच भी वो नाम शरीरां दे। पर ये शरीरां तो भी एक वखरा है कुछ संसार। तुसी वो तुसी शरीर नहीं हो, शरीर ते तुहाडी होंद नूं इस संसार विच प्रगट करन दा एक साधन है। असल विच ये शरीर किसी वेले नहीं सी, ये शरीर किसी वेले नहीं रहना, ये शरीर किसी वेले मात गर्भ दे विच सी, 9 महीने ला के निर्मित होया ते संसार दे विच जदों आया किसी वेले मासूम मां दी गोद विच सी, फिर ये विकसित हुंदा हुंदा बचपने विच आया, विकसित हुंदा हुंदा जवानी विच आया, विकसित हुंदा हुंदा बुढ़ापे विच आया ते फिर एक दिन ये शरीर नहीं रहा। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रह जाया, माटी माटी होई एक खिलर गए, बिखर गए जो सारे। पर महाराज कहते ये शरीर तो पहला भी तुसी इसी शरीर दे होंदिया भी तुसी उहदे शरीर तो बाद। शरीर ते तुहाडी होंद दे प्रगटावे दा एक साधन है, तुसी शरीर नहीं हो। मनजीत सिंह, हरदीप सिंह ये तुहाडे शरीरां दा नाम है, तुहाडा नाम नहीं। और ये जिदन तुहाडे शरीर नहीं सी, तुहाडा ये नाम नहीं सी, जिदन शरीर नहीं रहने महाराज कहते आया गया मोया नाम, ये नाम भी नाल ही काटना है। पर तुसी कहन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦ ਜਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ? ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ शहादत का जाम भी है, शरीर को लेके लाता कुछ भी लफ्ज पढ़ लो। पर गुरु साहब कहते तू मैनू नहीं और फिर खत्म कर सकेगा। असल में तेनू अपने अंदर भी दा सच, तेनू अपने आपे दा सच नहीं पता कि तू कौन है। इस करके तेनू ये भी नहीं पता लग रहा मैं कौन हाँ, ते जिन्हां तू दूसरे धार्मिक विश्वास को इस्लाम के विश्वास में लेके आना चाहता, तेन ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि तेन अपने आपे बारे नहीं पता लगेगा। इसी करके तेन दूजियां बारे भी नहीं पता। इस करके मैं कहां कहना, दसम पातशाह कहते मैं कहां तेन कहना कि तू धर्मी नहीं है, तू बादशाह ते है, औरंगजेब ते है, तेरे को धन दौलत भी है, फौजा भी है, सब कुछ है, पर ये तेरे को नहीं है, इसे धर्म नहीं है। शहनशाह औरंगजेब आलमी के दाराए दौरस्त, इस दौर का ये समझदार तुम दारा बादशाह है, पर दूरस्त दीन, तुम दीन तुम बहुत दूर है, धर्म नहीं है तेरे। धर्म इस करके नहीं
कि तू अपने जीवन के विच कदी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं कौन हाँ। तू इन्ना अंदरों डरिया होया कि तू अपने प्यो को भी कैद करता। तेरे अंदर रिश्तियों की सचमता नहीं मुक गई। इन्ना डरिया होया कि प्यो को भी कैद करता, भरावां का कदर करता कि ये ना ले जाए सारा कुछ, ये मैनू मिलना चाहिए। तू रिश्ते भी सारे तेरे है अपने इस डर तो, इस लालची तृष्णा को वृत्ति को कुर्बान करते। तेरे अधर्मी होने का परिणाम की है। इसे करके तू दूसरिया सारे खत्म करते तुरिया डरा के, जे तुम मेरी गल नहीं मनोगे मार देंगा। तेन ये नहीं पता लगता कि तू ना आप मर सकता है ना दूजे किसी को मार सकता है। मरण हार के जिया ना ही, ना तू मरण वास्ते बने है, ना मैं मरण वास्ते बनया, ना कोई और मरण वास्ते बने। वाहिगुरु जी ने सदा का जीवन बख्शिश करने वास्ते तेन एक साधन दिता कि जिन्ना दिता कि तेरे से कोल शरीर है, इस शरीर के विच रहंदियां अपनी सुरत नूं किते उस उच्चे विचार मंडल विच, ज्ञान मंडल विच ले जा जिथे तेनों पता लग सके कि तू कौन है, क्यों इत्थे आया है, इत्थे आउण दा तेरा मकसद की है, कि वो मकसद की पूर्ति किवें हो सकती है। उस मकसद के राही जीवन का सच, जीवन के देवनहारे का सच, इस संसार का सच, दिसते पसारे का सच, इस संसार के रचन वाले का सच तेन पता लग सके। कबीर जी कहते मैं नहीं मर सकता, इस करके नहीं मर सकता। अब कैसे मरो, मरण मन मानिया। मैंने समझ आ गई है कि ये जीवन का मरण का सच की है, मौत का सच की है। अब कैसे मरो, मरण मन मानिया। मर मर जाते जिनी राम ना जाने। ते गुरुदेव जी तो बहादुर साहब कहते तुहानू मौत का पैसा आउंदा ही इस करके है कि तुहानू जीवना नहीं आ रहा। हर जिते डरे डरे जिउने हो, चिंतातुर होके जिउने हो, किते तुहाडे जीवन में बेपरवाह की मस्ती नहीं लगती पई। पढ़ी जाने हैं सारे जाने जे निर्भव जिन हर भव ते है भी तिनका भव सब गवासी। लंघ गईयां साडियां भी जिंदगियां जिद्दां, पर भव गवासी नहीं होया। भव गवासी का सच प्रगट नहीं। पर गुरु तेग बहादुर पातशाह तो 2 दिन पहला गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का ते अज दा दिन असीं कहने आ ना, पर वो तो पहला भाई साहब मती दास जी, भाई साहब सती दास जी, भाई साहब दयाला जी, गुरु तेग बहादुर साहब ने वध तसीहे दे के उन्होंने शहीद किया। जिउंदे ही बंदे को मुंह दे विच लपेट के अग लाती जाए तसव्वुर कर सकते हैं। तवे के उत्ते पई हुई रोटी थोड़ी जी सेक लग जाए तो थोड़ा जा सेक लग जाए तो पानी तत्ता ज्यादा तत्ता ही कभी उत्ते लग जाए थे तक उठदियां सी। एक बंदा जिंदा जागदा ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। कोई चिंता, कोई डर, कोई सहम। जराद में चिंतातुर है। ये बंदा है कि की है? ये कोई करामाती है, शक्ति है देखो। ये डरता ही नहीं पिया, ये तड़पता ही नहीं पिया, ये कुरलाउंदा ही नहीं पिया, तीर दिहाड़ा ही नहीं मारता। एक बंदा जिउंदे की आलू वांग पानी च उबालिया जा रहा है और मस्त है। किसी सिख इतिहासकार ने, गैर सिख इतिहासकार ने इस गल का जिक्र नहीं किया कि भाई दयाला जी ने, भाई मती दास जी ने, भाई सती दास जी ने एक बार कितने आ गया हो। ऑप्शन तो है ही है ना उन्होंने को कि जा इधर जा उधर, जा मौत ते जा इस्लाम। गुरु के प्यार के विच जिउंदियां जिउंदियां गुरु की सिख
विचरदियां गुरु वाली जोत नाल इन्ने प्रकाशित रहे हैं कि हुण गुरु ते सिख दी बेपरवाही मस्ती दे विच आनंद विच कोई फर्क नहीं। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चल। ते गुरु साहब भी देख रहे थे पिंजरे लोहे दे पिंजरे च बंद, उन्होंने दिखाया जा रहा है कि आ देख तेरे सिखां नाल असीं की कर रहे हैं। ते सिख नूं पुछया जा रहा है दस तेरी इच्छा तुम की है, साडी मर्यादा है। तो कहते कोई इच्छा ही नहीं, असीं ते सिर्फ पढ़ते हैं ना जी। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां, पहचान सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। असीं ते सिर्फ रूटीन दे विच पढ़न वास्ते सुनन वास्ते सुनदे हैं ना, पर उत्थे केवल पढ़िया सुनिया नहीं उन्होंने, आत्मा के पद्धर ते रूह के पद्धर ते उन्होंने सुरती के लोएं राही सुनना है। गुरु के दर्शन केवल शरीरक अखां नाल नहीं, सुरती दीआं अखां नाल करने, हिरदे के प्यार नाल गुरु के कोल बैठना आया, गुरु नाल शब्द सुख का मेल बनाना आया, बह के चरण कर भाव के लोएं सुरत करे, नानक कह सियाणिए इब कंत मिलावा होए। भाई मती दास जी का, सती दास जी का, दयाला जी का इन्हें मिलाप हो गया गुरु रूह दे गुरु जोत नाल, सिख जोत रखती है। एको गुरु उपदेश चलाए तो उन्होंने पूछा जाए दस तेरी इच्छा, तो इच्छा को इच्छा सब पुजारी कहते साडी ते मर्यादा। हुण उन्हें पता नहीं कभी अपने आप को लैके जाइए ना, कभी अपने बच्चों नाल बैठिए, पति पत्नी बैठिए, भरा भरा बैठिए, मित्र प्यारे बैठन, ये गल्लां करन भी वो किस तरह के पल हो गए। मैं सीसगंज साहब नमस्कार कर रहा सी अनंदपुर साहब ते मेरे मत्था टेकदे अंदर मन मेरा भावुक हो गया कि सच्चे पातशाह जदों तुहाडे चौंकड़े लगे होणगे, तुहाडे गुरसिखां दे ये भाणे वरत रहे होणगे, किस तरह की वृत्ति होगी कि थोड़ी जी वो झलक वो भी समा वो पल मिटाउण की वृत्ति किस तरह की मस्ती विच होंदी। इस करके शहादत के अर्थ समझिए, फारसी दे विच इहदे अर्थ ने गवाही, अज भी कचहरियां दे विच लफ्ज वरतिया जाता है, उत्थे शहादतां देण वास्ते बुलाया है, शहादतां देनियां। शहादत फारसी का लफ्ज गवाही, ये लोग ते गवाह हैं, इस गल के गवाह हैं कि गुरु कोलों इदां जीवना सीख लिया, इन्ना मस्ती भरिया अपनी रूह के सुरती के पद्धर से जीवना सीख लिया कि हुण मौत का सच प्रगट हो गया। जिहड़ी चीज सब तो ज्यादा डराउण वाली सी उहदा सच समझ आ गया। इस करके नहीं हुण बहुत सब वासी का सच प्रगट हो गया। इस करके देव चुकड़ गया ते भावें आरे नाल चीरिया गया ते भावें दूर दे विच साड़िया गया, कोई फर्क नहीं। ये दुख शरीरां नाल ने, पर महाराज कहते तुहाडे शरीरां नाल वापरन वाला दुख, इस दुख नूं हंडाउंदा कौन पिया है? तुहाडा मन। जदों तुसीं अज्ञानता विच, बेध्यानेपण विच, अवेसलेपण च जीवन जिउंदे हो ना, ते सदा शरीर नूं नहीं, सदा अंदर मन नूं मिलदे। मन अंधे को मिले सदाए मारे, बैल ना भोगे दा तुहाडा मन भुगत रहा होंदा है। तुसीं कहंदे मेरा अज मूड ठीक नहीं, मारे कहते तुसीं कदी अपने आप का चिंतन करिया ते करो। बैठते हो तुसीं कोई मिलण वास्ते, तुहानूं आउंदा तुहाडे चेहरे ਦੀਆਂ खुशी दी चीर झटका ही नहीं हो, कहते भाई गल की है, कहंदा अज मेरा मूड ठीक नहीं। सारी जिंदगी तुहाडा मूड ठीक नहीं होंदा, मारे कहते कोई ना कोई कारण रोज वापरदा है ते तुसीं कदी चिंतित होंदे हो, कदी भयभीत होंदे हो, कदी क्यों? गुरुदेव कहते तुहानूं जीवना नहीं आ रहा है, सुकेत होके जीवना नहीं आ रहा, शरीरां तो ऊपर उठ के सुरती के पद्धर ते जीवना नहीं आ रहा। तुसीं गुरु कोल भी आउंदे हो ते शरीरां करके ही आउंदे हो, ते शरीरां करके बैठदे हो, ते शरीरां करके कीर्तन करते, विचार करते, पाठ करते, सुनते, ते शरीरां दे नाल ही तुसीं इत्थे रिश्ता बना के चले जाओ। गुरु साहब कहते नहीं, जे शरीरां तक रहोगे ते दुनिया चात्मा को भजोगे, मौत के डर तो भयभीत होके भजोगे तुसीं।
बेदावा लिखोगे, पर जे शरीर तो ऊपर उठ के सुरती के पद्धर से जीवोगे। पंडित कृपानंद आया सी ना, किस हालत में आया? बेबस, चिंतित सी, डरे हुए सी। पंडित कृपानंद के उन्होंने साथी का मौत के घाट उतार दिता जाना है जे असीं औरंगजेब की गल ना मनी। अपना धार्मिक विश्वास असीं छड्डना नहीं चाहते, वो भी छड्डण नाल मन दुखी होना है। पर जे ना छड्डिया ते मौत आनी है सामने। मौत भयभीत करती है, बेबस बेबस ने कुछ नहीं ज्यादा समझ रहा कि इस करके गुरु की शरण में आते हैं। थोड़ा जिहा समझिए, शरीर करके मन दुखी है, शरीर करके चल के आते हैं सारे जाने। सच्चे पातशाह को कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब सानू बचा लो। कि गुरु साहब के अंदर कितना प्यार है मनुष्यता के वास्ते। और कदर गुरु साहब गुरु जो यात्रा कर रहे हैं ना, गुरु नानक साहब तो होते था, गोबिंद राय जी शरीर करके नाम साहब। पर मैं फिर बेनती करा, ਅਸੀਂ शरीर के पद्धर ते जीवन वाले शरीर दी कहानियां करते हैं, शरीर का इतिहास सुनाते सुनते हैं, शरीर का इतिहास लिखते पढ़ते हैं। लेकिन इतने गुरु प्यारे शरीर की गल नहीं चल रही। कहानी तो यह नहीं कहना, साखी तो यह नहीं कह के पंडित कृपाराम के सारे आए थे, उन्होंने आके साडा धर्म खतरे च है, बचाओ सानू। ते गोबिंद राय भी साखी तो यही सुन रहे ना भी आए बेड़ते बेड़ते आगे बैठे अपने पिता को वैरागली अवस्था देखिया पूछते हैं की कारण है, कहते जी इन्हों का धार्मिक विश्वास खतरे कहते किसी महापुरुष के बलिदान की लोड़ है, कुर्बानी की लोड़ है। तो गुरु साहब ने गोबिंद राय जी ने मस्ती के आख्या कि तुहाडे तो बड़ा महापुरुष को कौन हो सकता। उन्होंने संसार का पत्र दे लिया, असीं भी रिश्ते संसार का उतार रहे हैं। मां प्यो पुत्र धियां साडे एक मोह के रिश्ते ने। ते शरीर के पद्धर ते मेरे पुत्र को कुछ ना हो जाए, मेरी धी को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, प्रतिभाव ना लगे। पर वो किस तरह का पुत्र है जी जेड़ा कह रहा है कि तुहाडे तो बड़ा महापुरुष कौन है, जाओ। की समझते हैं कि गोबिंद राय जी के मन च अपने पिता वास्ते प्यार है। जो पिता पुत्र की गल सुनता है साखी कहती है कि तैयार हो गए, प्यो अपने पुत्र ना प्यार है, मेरे परिवार का की बनेगा, मेरी पत्नी का की बनेगा, मेरे दरबार का की बनेगा। सारे साधन ने इन्ना कुछ है साढ़े कोल, किसी चीज़ का कोई घाटा नहीं। रोज मैंने मत्थे टेकन वाले इन्ने ज्यादा, ये सारे कुछ का की बनेगा, कुछ जाएगा सारा कुछ। पर गुरु तेग बहादुर पातशाह हजूर किस मस्ती विच ने, की सोचते होंगे उस वेले, प्यार ने सिखां नूं नाल लिया ते यात्रा करते करते तुर पे। ते गोबिंद राय जी भी मस्ती विच ने ते तन पूज मां माता गुजरी जी वो किससे बसता है पता है। पति ने आज जाके मुड़ के शरीर तौर पर वापस नहीं आना, लेकिन मां गुजरी भी मस्ती में है। किस तरह के रिश्ते ने गुरु प्यारे हो। कभी ये बैठ के विचार करया करिए इन्हां शहीदी दिनों के उत्ते कि ये रिश्तियां का किस तरह का सच है। ते मैं बेनती आप जी को यह कर रहा सी कि कृपा राम जदों आए दूसरे पंडित जना नाल भयभीत हुए चिंताकुल हुए बेबस हुए आके बेनती करते। और वो गुणी आदमी है, महापंडित है। कश्मीर हिंदुस्तान भारत का दिमाग आख्या जाता है, इसे करके सब तो बड़ा दो जगह ते हमला सीगा, एक बनारस विच ते एक कश्मीर दे विच कि इन्हां नूं जे असीं इस्लाम च बदल लिया ते सारा भारत जिहड़ा है वो बदलूगा।
ते पंडित कृपा राम बड़े विद्वान ने, संस्कृत के भी ज्ञाता ने, वेदां के ज्ञाता ने, और बहुत कुछ विद्या उन्होंने। ते गुरुदेव बहादुर साहब की करते हैं, उन्होंने शहादत की तैयारी करते थे। पंडित कृपा राम जी को कहते हैं, मेरे पुत्र को तुसीं संस्कृत पढ़ाउणी है, इतिहास के पढ़ने। गुरु गोबिंद राय जी पातशाह को पंडित कृपा राम संस्कृत पढ़ाते हैं। इस सिख की यात्रा की मैं बेनती आपकी ना कर रहा। वही पंडित कृपा राम गुरु गोबिंद राय जी को संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद के रूप में ते शागिर्द के रूप में एक रिश्ता बनाते बनाते एक समा आता है जब खंडे बाटे का कौतक वही पंडित कृपा उस्ताद है। खंडे पाटे का अमृत कृपा सिंह बन जाता है। एक बेवस डर गुरु की संगत में उस्ताद शागिर्द गुरु के सिख लै आंदा है ते गुरु के प्यार गुरु के दर तो खंडे पाटे का पावन छक के गुरु की संगत में नाम सिमरन की बाणी की संगत करता करता सुरती करके गुरु नाल इस तरह का रिश्ता कायम कर लेता है। एक समा आता है चमकौर की गढ़ी दे विच ओही कृपा राम भाई सर कृपा राम सिंह बन के गुरु गोबिंद सिंह साहब के प्यार में शहीद हो जाता। एक इस तरह का सफर है गुरु प्यारे की जिंदगी का। जो गुरु को चल के आता है चिंता तो रहे बेबस है डरिया गया पर वो भी कृपा राम कलगीधर पातशाह की संगत करता करता कृपा सिंह बन के उसे ही गुरु के प्यार में जब चमकौर की गढ़ी में शहीद होता है। की सोचते हैं उसके अंदर की होगा। मैं कितों चलिया थी कश्मीर तो जो चलिया थी उदों मेरे अंदर की सी ते जिस दिन शहीद होता है उस दिन उसकी सुरती बदली की सी। ये शरीरों का इतिहास नहीं है गुरु प्यारिओ, ये रूहां का इतिहास है। ये किताबों में नहीं है। ये तुहानू सानू गुरु की संगत में बैठ के गुरु के सिख के तौर पर गुरु के शब्द नाल जुड़ के समझ में आ सकता है। इस तो बिना भाई मतीदास जी का भी परिवार है, भाई सतीदास जी का भी परिवार है, भाई दयाला जी का भी परिवार है। 19 सिख शहीद हुए ने, 19 सेवक शहीद हुए भाई मतीदास जी के परिवार में। 9 प्यार भरा ने जेडे गुरु प्यार में शहीद हुए ने। कैसे अजीब लोग ने, कैसे बाबरे लोग ने। शरीर की गल नहीं है, ये सुरतियां की खेल है। इसी करके बादशाह कहते मैं तुहानू अपने सिख सेवक के तौर पर गुरु नानक के दर तरफ जब आऊँगा देखदा तो मैं चाहूँगा तुहाडे जीवन के अंदर का के डर का रौला रौला जिहड़ा डर डर डरना मन का शोर कि मन का रौला रप्पा तुहाडा जिहड़ा जिहड़ा तुहानू रोज चिंता तो करदा रोज भयभीत करदा तुहाडे अंदर का डर ते तुहाडे अंदर का लालच ये प्यार में बदल जाए। तुसी शरीर दे विच जिन्ना चिर जियो इस शरीर का सच समझो कि शरीर का इस शरीर की भांडे का सच समझो। शायद जी कहते सच करके जाने हो मेरे को आने वाले हो मारे सानू सिखो नहीं कहते मनुखो नहीं कहते सानू साधु कह के बुलाते हैं संत जन कह के बुलाते हैं साधु कह के बुलाते साधु ये तन मिल गया जाना इन्हें मुक जाना किसी दिन नहीं सी किसी दिन नहीं करेगा। पर इस तो अगली गल मारे कहते रमस पर मैं तो समझाने चाहना जी थोड़ी पकड़ साधु ये तन मिल गया जाना मेरा तन है तुहाडा तन है मारे कहते तुहाडे धीआं पुत्रां दा तन है भैन भरावां दा कोई भी रिश्ते सारियां दा तन मुक जाना है। पर एक एहो जी भी खेड़ है तुहाडे अंदर वापरी जिहड़ी नहीं मुकनी। साधु ये तन मिथ्या जानो
या भीतर जो राम वस्त है साचो ताने पहचानो। जिस दिन अपने अंदर दे रब दी, अपने अंदर दी रबी जोत दी रमस तुहानू पता लग गई कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आम संसार के जीवा वांग जीव नहीं हाँ, मैं ते रब रूप हाँ। जिदन तुहानू अपने अंदर दे रब होण दा, रब स्वरूप होण दा बोध होया ना, फिर मारे कहते ना ते तुसीं आप डरोगे, क्योंकि रब ते नहीं ना मरदा ना कि साचो ताहे पछानो। साचो दा मतलब यह है जेड़ा सरीरी है, जेड़ा पहला भी सी हुण भी हैगा ते शरीर नहीं होएगा वो भी होएगा। साचो ताहे पछानो, एदी पछाण करनी सीख लो मेरे कोल आके, ते जिदन तुहानू अपने रब रूप होण दा पता लग गया ना, तुहानू आ सब भांडे तुहाडे साजे आ विच वस्त हर थारा, इन्हां सारे शरीर रूपी भांडियां दे अंदर पिया होया हर वस्तु जिहड़ी है हरि रूप ओदा भी पता लग गया कि हुण रब मैं पटियां गल्लां करतियां ना पर वो डराएगा फरीदा रब मां है तिस बिन कोई ना है, तो बिना कोई तुसी भी रब 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 तुहानू अपने रब रूप होण, अपने रब रूप होण दा पता नहीं लगदा ते दूजे दे रब रूप होण दा भी नहीं पता लगदा। तुसी भी डरे होए ते दूजा भी डरे होए जेहड़े ने एक दूजे नूं डराई जांदे, आप मौत तो डरे हुए है ते जदों दूजे नाल वैर विरोध पैंदा बेगाना समझे ते दूजे नूं असीं मौत दा भै दिंदे हां। ब्रह्म ज्ञानियां तो ऊपर उठ के सुरतियां दे अंदर ते जीना सीख गया। डर है, डर किसका कोई कौन ते डराउण वाला कौन है? जे मैं रब जियरा नहीं मैं पता अब कैसे मरूं, तां कबीर जी कहते हैं जे मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। जिस मरण की गल करके सारा संसार तरा तरा करता है, कहते गुरु के शब्द राही उस मौत के सच का प्रकाश हो गया। अब कैसे मरूं? गुरु साहब कहते मैं तुहानू इत्थे लेके जाना चाहूँगा। तुहाडे अंदरों मती दास प्रगट होया देखना, तुहाडे अंदरों भाई बैठे सामने कौतक उस वेले सच्चे पातशाह हजूर दे एक दुनिया इन्हां भद्दी जी वरतदे छड्डो मछली कहने उन्हां दे अंदर दी ब्रह्म ज्ञानता मजाक कर रहे हैं। डरिया डराउणा चाहुंदा तेनू मैं इदां करके चीर दियांगा ते भाई मती दास कहते किहनूं चीरेंगा? मैनूं नहीं चीर सकदा, मेरे जिहड़ा मैनूं मिलिया होया शरीर है तू नहीं चीरेगा, इहने उदा मुक जाना पर मैं नहीं। तू करके देख, तैनूं इस शरीर विचों असीं ये साखी सुनते हैं ना, वो साखी प्रतीक है कि भाई साहब जपजी साहब का पाठ करन लग गए ते उधरों आरा चल रहा है कि जपजी साहब का पाठ चल रहा है ते आरा अखीर तक चल रहा, जपजी साहब का पाठ संपूर्ण हो गया। कोई भरियो बाणी कहती गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, जपजी का पाठ कीता नहीं भाई साहब ने, हो रहा है सिमरन कीता नहीं जा रहा, सिमरन हो रहा है। अपने रब रूप होने का एहसास हो चुकी है, या भीतर जो राम बस है साचो ताने पछानो। हुण करता नहीं है भाई मती दास जी, भाई दयाला जी करते नहीं हैं, करता वो है आप करता आप भुगता आप कारण किया। इस करके पातशाह कहते मैं तुहानू इत्थे लैके आउणा चाहुंदा। वैराग
शरीरां दे मिथ्या होण दा वैराग, संसार दे दिखदे सुखां पदार्थां दा, रंग तमाशियां दा, इन्हां दे मिथ्या होण दा वैराग भी ये मिथ्या ने काल दे नाल पकड़ करी है। जिदा मैनूं शरीर वरतन वास्ते मिले है, इसी तरह के शरीर के नाल जुड़े हुए पदार्थ सुख साधन ना इन्हें रहना है ना उन्होंने रहना। जितने आश्रम में बैठे कहते पैसे मेरे तो पहला भी कितने आए, कहते हैं कि बाप, कहते हैं कि बेटे, कहते दूसरे जीव जी मुए मुए जीवे। कितनी बारी इसी तरीके नाल ही पाने पड़ते सानू नहीं पता। गुरु साहब कहते मरण विच ते अकाल चलाने विच, गुरपुरी सधारण विच लफ्ज वरत लेने अभी कभी समझो तो इसी बात है कि फलाना गुरसिख अकाल चलाना कर गया, तो मतलब तो समझो ना, ये कला सरकार वाला लफ्ज नहीं है, ये उस मंजिल तक पहुंची हुई रूह का सच है। उन्हें जिंदे ही अकाल 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 करना सीख लिया, जिंदे ही राम राम करना सीख लिया, खुदा खुदा करना सीख लिया। जिंदे जी गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे हरि हरि करना सीख लिया। उन्होंने वाहिगुरु वाहिगुरु कह लो, सतनाम सतनाम कह लो, ओंकार कह लो। मारे कहते नहीं मैं ये नाम के चक्कर से नहीं पैना चाहता। मैं तो एक गल कहना, जेड़ा जिस भी तरीके नाल वाहिगुरु नूं याद कर रहे ना, जेड़ा पारसी लफ्ज वरत के मैं कि उन्होंने नमस्कार कर, मैं उस नाम जपण वाले को नमस्कार करता। नाम किस अखर दे नाल जपिया, किहड़े लफ्ज नाल जपिया, मैनूं इहदे नाल वास्ता नहीं। धन गुरु नानक साहब बाणी विच इह कहते, तुहाडीआं लड़ाइयां इत्थे नहीं महाराज कहते, कोई बोले राम राम कोई बुराए। तुसीं अल्लाह के नाम ते, खुदा के नाम ते, राम के नाम ते, रहीम के नाम ते झगड़े पाए ने कि नहीं, ऐ पवित्र है नाम, ऐ पवित्र नहीं है। ये लौंगे नाम तां तुहाडा कारोबार होना नहीं ते जी असीं वाहिगुरू के नाम ते, सतनाम के नाम ते इन्हां बखेड़े पाए हुए ने। पर पातशाह गुरु नानक साहब की कहते हैं, सिर नानक लोकां पाम है, मेरे नानक दा सिर ते उन्हां महान ब्रह्म ज्ञानियां दे पैर, जे तेरा नाम जप रहे हैं। मैं अपना सिर उन्हां दे पैरों ते, सिर नानक लोकां पाम है, किन्हां दे बलिहारी जाओ जेते तेरे नाम, मैं सदके जाना। केड़ा नाम लैंदे, ये जिन्ने भी तुहाडे नाम ने, मैं उन्हां सारे नाम लैण वालियां दे सिर ते अपने, उन्हां दे पैरां ते अपने सिर कुर्बान करना होना। लो ते सी मारे ते तुसीं अंदर दे सुच्चे प्यार अंदर दी तड़प नाल तुहाडे अंदरों वैराग उठे, संसार वालों उपरांता होवे, पर त्यागों जदों संसार को नहीं त्यागना, किनू त्यागना? साहब जी कहते साधो मन का मान त्यागो। संसार को नहीं त्यागना, मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तंबे अनस पागो। दुर्जन वृत्ति का त्याग करो, विकारी वृत्तियां का अपने अंदरों भी ते बाहरों भी, ताकि तुहानू निरंकारी वृत्तियां नाल, वाहिगुरू जी दी दैवी वृत्तियां नाल सांझ पाउणी आ जाए। कि बैरागिया जाओ है, बैराग भरिया जाओ। एक पासे वैराग है, ब्रह्म है, ते दूजे पासे वाहिगुरू जी नाल प्यार है, वाहिगुरू जी दे प्यारिਆਂ नाल प्यार। उत्थे जाके जदों ये प्यार उपजदा है, उस प्यार विचों जदों बेनतियां निकलदियां ने, मेरे प्रीतमा जीओ तुद बिन खरी निमाणी, ते तुद बिन खरी निमाणी करते करते मेरा मन उठा। उत्थे जदों एक कड़ी ना मिलती तां कल हुण कल मिली है, हुण कल मिली है, कल नानक आवे वारी। हमारे कहते एक दिन फिर आउंदा जदों उच्ची आवाज विच वो सिमरन रसिया जिहड़ा वो कहंदा नस मन्यो कि लिखो करता कर रहा है, दूतन डैन पाया। हुण उन्हां नूं डर है, मैनूं डर नहीं है। जेड़े मैनूं डराउण वाले वो डर रहे हैं।
ये है शहादत का सच। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते पै कहो पाओ पढ़िया, पै कहो पाओ पढ़िया, सिमरत हर नाम, डर नूं डर पै गया महाराज कहते। जब बंदगी विच कोई जुड़ता है ना, तू ही विच कोई जुड़ता है, मैं तू वाल जुड़ता है, हाँ मेरा तू हमारा दे विच आउंदा है, हाँ तेरा तू हमारा। तो महाराज कहते उत्थे फिर ये अपने रब रूप होंदा है, जब पता लगता है फिर उच्ची आवाज में नस के करता कर है दूतन बहन पाया, गोबिंद प्रगटाया। फिर देखो जेडे मौत के फरिश्ते ने उन्होंने डर पै गया, भै कहो पाओ पढ़िया, सिमरत हर नाम, सगल ब्याज मिटी ते गुण की, दास के पूर्ण होए काम, पल मदी दास जी के पूर्ण हो गया। हूँ डरा के दिखाओ, इस शरीर नाल ही करोगे ना जो करोगे, मेरे नाल करके दिखाओ। पर तुम पता ही नहीं कि तुसी कौन हो, मैं कौन। गुरुदेव कहते मेरे को बैठ के ना सीखो, औखा बहुत औखा। जन्म नाम एक खेल कठिन है, औखा। इस डरन के डराउन की गिरती हो, लाज की गिरती हो, पकड़ की गिरती हो, तो उठना होगा। पर गुरुदेव कहते मुख गुरु बन करोगे, एक ही समझ पै गए। जब नाम की खेल कठिन है, कि तुम गुरुमुख जाना, गुरुमुख बन के इसमें जान सकते हो, समझ सकते हो। कृपा राम तो कृपा सिंह बन के बेबस होए कोई डरे चिंता तुर, तुसी गुरु के प्यार में अपने आप में लेके रोज सकते हो, निछावर कर सकते हो। तुम बकरियां की बलि देने की लोड़ नहीं, जीवां की बलि देने की लोड़ नहीं। अपना आपा कुर्बान गुरु तो करके मस्ती मां गुजरी इस प्यार में जी बैठे। गोबिंद राय जी गुरु गोबिंद सिंह साहब पढ़ के इसे प्यार क्यों रहने पहला पुत्र के रूप में प्यो तोड़ते दुनियावी रिश्तियां का सच भी है। फिर पिता बन के अपने पुत्रां नूं तोड़ते हैं, ते पुत्र भी अनंत विच ने। सामने देख लिया दिन आ गए, मेरी बेनती मैं समाप्ति कर पर इन्होंने दिनों के रंग तमाशियां तो बचो, दुनियावी हास्यां खेड़ियां तो बचो। कि 5-5, 10 15 मिनट अपने परिवार में बैठे इन्होंने दिनों के कटो पर बैठिए। वो मुसलमान साल के एक महीना रोजे रखते हैं, व्रत रखते हैं, हमारे कहते मैं तो भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक कहना कर्जा गुरु प्यारे साढ़े सिर के। हाँ ब्रह्म ज्ञानियां का जिन्होंने साढ़े स्वैमान वास्ते, साड़ी बेपरवाही वाली मस्ती वाली आनंदमय जिंदगी वास्ते अपना आप लेखे लाया कि असी जियो सकीए आनंद विच। मौत के पैर हर तरह के पैर तो मुक्त हो गए, हर तरह की चिंता तो सहम तो मुक्त हो गए, मस्ती में जियो सकीए। कदी ते बैठ के अपने बच्चों नाल गल करिए, कदी ते प्रश्न पाइए अपने बच्चों नाल, बेटा तुहानू पता है तुसी कौन हो? मैं तुहाडा पुत्र हां, मैं तुहाडी धी हां। नहीं, तुसी साहिबजादा अजीत सिंह जुझार सिंह ते बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते भैन भरा, तुसी माता साहब कौर जी के पुत्र धीआं हो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र धीआं तुसी। जिन्हां वर्गा पिता, जिन्हां वर्गा पुत्र, जिन्हां वर्गा पति, जिन्हां वर्गी पत्नी, जिन्हां वर्गी कोई सिख नहीं हो सकता। बेटा ये दुनियावी रिश्ते में पति पत्नी का कभी बैठ के अपनी पत्नी नाल, अपने पति नाल इन्हां दिनां विच धन धन करते हैं, अपने सर सदके जाते हैं, अपने बच्चों नाल बैठ के ये बातें पाइए किस तरह के वो पालन होंगे। ते कितनी अजीब किस्म की मस्ती में वजीर खान डराउना चाहता है। असी कहने वो 5 साल के 7 साल के मासूम, वो भाई शरीर मासूम ने, रूहां मासूम नहीं आईयां, इसे करके उन्हों का नाम बाबा जोरावर सिंह है। 5 साल के बच्चे को कोई बाबा नहीं कहते बुलाता, और रूहां को बाबा कहते बुला रहे हैं। असी उन्होंने रूहां की बुजुर्गी, उन्होंने बुजुर्ग रूहां की ब्रह्म ज्ञानता तो असी बाबा कह के, बुजुर्ग कह के
5 साल का शरीर बाबा नहीं होता, पर वो बाबियां तो भी बड़ी गल ब्रह्म ज्ञानता वाली गल जुड़नी, उस अवस्था च जुड़नी। उन्होंने पता आ खिड़की क्यों रखी गई है बड़े गेट के विच, ये झुकाना चाहता है, पर किहनूं झुकाएगा? शरीरां सानू ते नहीं झुका सकेगा। इस करके वो शरीर पवित्र, वो शरीर पूजन योग, वो धरती पूजन योग जेड़ा कह रहा है जोगी अल्लाह याद ना, बस एक जगह है इबादत के लिए, एक कोई धरती पे जगह है जी इबादत वास्ते है, पूजा वास्ते है, नमस्कार करने को कटाए बाप ने बेटे, जहाँ खुदा के लिए वो खुदा सी रब रूप सी, तेरा रूप ने अपना आपा लेके लाया, पर कैस खलकत नाल प्यार करते हैं ये रब के दर्शन करते हैं, अपने अंदरों दर्शन करते हैं। महाराज कहते इदा बैठो अपने बच्चों का सत्संगी रिश्ते बना के 5-10 मिनट 15 मिनट अपने बच्चों का रूहां का सत्संगी रिश्ता, सिख बड़ा रिश्ता बना के वो सत्संगी घर वातावरण पैदा करके जिथे इन्हां महान पुरखों की बाबियां की बात पाउंदियां पाउंदियां तक गुरु तेग बहादुर साहब की बात पाउंदियां यह उपदेश अपने दृढ़ कर सकिए। सच साधो ये तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम वस्त है साचो ताने पछानो, ताकि असी निर्भव निर्भव करते हैं, मूल मंत्र का पाठ करते हैं, कदे वास्ते करते हैं? सानू पंज प्यारे कहते, सानू भाई साहब भी कहते, एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर काल पढ़िया करो, मंत्र का पाठ करिया करो, कदे वास्ते करना भाई? रब होएगा निर्भव होएगा, मैनू की लेना? निर्वैर होएगा तो होएगा, मैनू की लेना? मारे कहते नहीं तेनू ही लेना, मैं तेरे वास्ते दस रहा कि रब निर्भव है, तू पै पीते हैं, पर तू जिदन अपने रब रूप होने का पता कर लेना, तू निर्भव हो जाएगा। निर्भव दिन हर निर्भव क्या है, दिन का बहुत सब हुआ पुराना जुगा की बादशाह रहमत कर सन उस निर्भव की वाहिगुरू जी की बात पाने वाले निर्भव सतगुरु की याद बनाने, उन्होंने बख्शी हुई बाणी नाल अपने आप को निर्भव करने की दात प्राप्त हो जाए। पहले काम तो मैं बेईमानी भावना सच सत संगीत ज्ञान कट हो सके साडे घरां विच भाई मतीदास जी की रूह का प्रवेश हो सके। धन गुरु गोबिंद तेग बहादुर साहब की याद बनाते हैं, उन्होंने बख्शिश की गुरु के जीवन दुख जीवन जल्दी हो सकी सुरक्षा के प्यार की बहुत धन्यवाद थोड़े सारे का गुरु प्यारे मेरे अजीज प्रीत सदा दीप सुपर याद किया। महाराज कृपा कर सारे के सत्संगी प्यार सत्संगी साझा के बख्शी रखो। गुरुदेव की बाणी की शहादत की विचार करते हैं, अपनी दुआ करनी है। फतेह बुलाओ जी। वाह